Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, all the viewers. This is Miss Goodbye, Mr. Chips, another episode of those question and answer session. It is another session. So this is about Mr. Chips and Mrs. Catherine Bridges. Catherine Bridges, they had lots of difference between their age. The Chips was almost double of the age of Catherine, but Catherine liked Mr. Chips because of his simplicity, his quiet manners, and this was actually the liking. That was why they got together and they got married. And other questions are about why did he retire? Because he had old manners, old education he had. So his ways of educating the children, those were actually old. And Mr. Raston, who was a modern educationist, so he had new and modern methods. So he wanted Mr. Chips to change, but as Mr. Chips didn't change, so he asked him to retire. Okay, we go to the questions. So the first question is, what was the social and academic status of Mr. Chips? Mr. Chips was a mild conventional man, mild, हल्का सा conventional रवायती आदमी था, teaching Latin and Greek language, जो कि पढ़ाता था Latin और Greek, लातीनी जुबान और यूनानी जुबान. At Brookfield में whereas Chips was overage academically, तो जो पढ़ाने के लिहाज से मिस्टर चिप्स की जो उम्र थी वो ज्यादा हो चुकी थी. He had to face discipline issues, उनको discipline issues का सामना होता था. Discipline के जो मसाइल थे वो उनका सामना करते थे मिस्टर चिप्स. Why did Catherine Bridges begin to like Mr. Chips? So as I have already told you, she liked him बिकॉज यहाँ पे भी आप वो जो प्रिंसिपल जो तरीकाकार है क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि सबसे पहले आप नाउन बताते हैं उसके बाद फिर प्रोनाउन देते हैं. यहाँ पे मिस्टर कैथराइन मिसेस कैथराइन ब्रिजेज होना चाहिए था मिस कैथराइन ब्रिजेज लाइक हिम बिकॉज. लेकिन क्योंकि ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन चली आ रही है तो इसलिए चिप्स और ये सारी बार बार उसको देना भी जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ शी लिखा गया हुआ है. वैसे अगर अकेला सवाल आए तो आपने पूरा लिखना है. कैथराइन ब्रिजेस लाइक्ड हिम बिकॉज ही वाज हार्ड टू गेट टू नो. वो मुश्किल था उसको समझ लेना भी बिकॉज ही हैड जेंटल, बड़े नरम मिजाज था और क्वाइट मैनर तो बड़े उसकी आदत अतवार जो थी वो खामोशी के साथ वो सारे काम शाम करता होता था. एंड दो हिज ओपिनियंस वर ओल्ड, अगरचे उसके जो उसकी राय वगैरह होती थी वो ओल्ड थी, पुरानी थी, बट येट वेरी ऑनेस्ट. लेकिन वो बहुत ऑनेस्टी पे मबनी होती थी. वो दयानतदारी के साथ जो बात करता था वो करता होता था, जो राय देता था दयानतदारी के साथ देता था. ये बात जो थी मिस कैथराइन ब्रिजेस को बहुत पसंद आई, ये ऑनेस्टी एक्सेट्रा. Okay, the next question is, what were Mr. Chips feeling after the death of Catherine and baby? कैथराइन और बेबी की वफात के बाद मिस्टर चिप्स जो थे वो क्या महसूस कर रहे थे? मिस्टर चिप्स वाज वेरी सैड. मिस्टर चिप्स जो थे वो बहुत उदास थे. ही वाज वेरी मेलकॉनिक, ही वाज वेरी अनहैप्पी ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ. अपनी बीवी और बच्चे की वफात के बाद ही वाज सो सैड, वो इतना उदास था that he did not receive condolences. जो लोग ताजियत के लिए आ रहे थे उसने उनसे ताजियत भी उनसे ना ली, उनसे ना वसूली उसने. और जो था वो इतना उदासी में ऐसी कैफियत हो जाती है बंदे की, डिनाइल की कैफियत में चला जाता है. डिनाइल मीन्स कि वो उसका इनकारी हो जाता है. वो जब वो इनकार कर रहा था तो उसने क्यों लेनी थी कंडोलेंस वगैरह, इसलिए वो अगर मान लेता तो फिर उसके बाद वो कंडोलेंस वगैरह भी लेता, but he did not receive condolence. Okay, the next question is, why and when Chips was asked to retire? This I have already told you. In 1913, Ralston asked him to resign because Ralston was a modern. Here, put A over here. Ralston was a modern educationist, and he did not like the old method of Mr. Chips.
he did not like the old method of Mr. Chips. Mr. Chips के उसने जो पुराने तरीका कार था उसको पसंद न किया, तो इसलिए उसने कहा मिस्टर चिप्स से कि आप रिटायर हो जाएं। What kind of humor was that of Chips? किस किस्म का मजाक जो थे वो करते होते थे मिस्टर चिप्स? Mr. Chips had earned a reputation of being a jester due to him due to his humor. He often asked jokes and witty sentences. He quipped jokes, he cut jokes, quipping, etc. वो किया करते थे, वो जो है वो लतीफे सुनाया करते थे, और विटी सेंटेंसेस, और कोई जो थे इस तरह के फिक्रे, जो जुमानी फिक्रे, और कोई जो है अकल से जो दानिश भरी बात कोई ना कोई इस तरह की वो कर देते होते थे। ठीक है, जरा पुरलुत्फ पैराए में मिस्टर चिप्स मुख्तलिफ चीजें जो है वो उनको बयान करने के लिए और उन चीजों को समझाने के लिए उस तरह के जो थे वो दिया करते थे, फिक्रात वगैरह बोल दिया करते थे, और लोगों को जी ख्वाहिश होती थी उनसे कि वो उनसे इस तरह की जो है वो रिमार्क्स जो है और इस तरह के लतीफे वो उनसे सुने, और इसलिए वो कोशिश करते थे उनको पोक करने की, उनको पुश करने की कि वो इस तरह के रिमार्क्स जो है वो दें। पीपल प्रिपेयर्ड इट माइंड फॉर जोक्स, लोगों ने उनको जो है उनका दिमाग जो ज़हन बनाया हुआ होता था इस किस्म के जोक्स के लिए। Okay, gentlemen, these are the questions very important as far as your education, as far as your exam is concerned. So you are going to write them down into your notebooks and learn them by heart. And if you have got any query, you can always ask on WhatsApp. We'll inshallah be waiting for your replies or your comments, whatever you want to give. We will be waiting for you and prepare them. And once you get back to the college again after this pandemic thing is over, inshallah, you will be tested out of these questions.